Look at this chart carefully. These are the names of students in a class. Now, can you tell me who secured a second position this year? Radhika or Sophia? If you said Radhika, why can't it be Sophia? Or why can't it be Rohan? The truth is, you can't tell who secured a second position because you got no context here. This can just be the roll number of students in a class or maybe a general serial number of students. You will be needing a context or a scale in order to figure out what that list is about or what is the position of a person in their class. So set aside all your feelings of resentment because we are gonna start with scales of measurement. In order to understand scales of measurement, it's important to understand why we are studying it. It's important to understand what kinds of data are used to study scales of measurement. So my name is Aman and this video is brought to you by Psychologic. So let's first understand what is a data. In a simplest term, data is information. It's the stuff that we collect, observe or measure to learn more about the world. In the context of psychology, data could be anything from people's test scores, the number of hours someone sleeps or how many friends they have. Basically, कोई भी information जिसको हम collect करने के बाद analyze करेंगे और किसी conclusion तक पहुंचेंगे, उसे हम data कह सकते हैं. Scales of measurement is made up of two words, scales and measurements. So what do you understand by a scale? A scale is a system of ordered marks used for measurement or classification. आपको अपना weight check करना है for example. आपको चाहिए weighing machine. That's a scale. अगर आपको notebook की size measure करनी है, आपको चाहिए एक ruler. That's a scale. Now in context of data and statistics, a scale represents a way of measuring or classifying variables. जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कि क्लास में बच्चों की पोजीशन पता करने के लिए we needed a context. We were not sure about the rank of a student in a class. It can be general admission list or a general serial number. So now what is measurement? In the process of determining size, amount or degree of something using a standard unit. मतलब एक प्रोसेस हम किसी भी एक स्टैंडर्ड नॉर्म को लेकर कुछ पता करते हैं. जैसे हमने वेइंग मशीन लिया, इट्स अ स्केल. हम उसके ऊपर खड़े हुए अपना वेट चेक करने के लिए, दैट्स मेजरमेंट. सो इफ यू टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक्स फॉर एग्जांपल, साइकोलॉजी में कभी भी हमें रिसर्च करना है तो हमें डेटा की जरूरत पड़ेगी और उस डेटा को स्टडी करते वक्त हमें कुछ स्केल्स की जरूरत पड़ेगी. बट व्हाई इज दैट? द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि व्हाई डू वी नीड स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स? द फर्स्ट पॉइंट हियर इज क्वांटिफिकेशन. अब कुछ पेपर पेंसिल टेस्ट होते हैं जिसमें हम लिकर्ट स्केल का यूज करते हैं. अच्छा, एक और चीज मैंने यूजुअली देखा है कि लोग इसे लाइकर्ट स्केल बोलते हैं, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इट इज लिकर्ट स्केल. एनीवे, कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक, लिकर्ट स्केल में ऑप्शंस होते हैं स्ट्रांगली अग्री, अग्री, न्यूट्रल, डिसअग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री. आप मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर आपको पता नहीं होगा कि किस ऑप्शन में कितने मार्क्स देने हैं, तो आप कैलकुलेशन कैसे करोगे? आप डेटा को एनालाइज कैसे करोगे? नहीं कर सकते, राइट? सो दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर पॉइंट, डेटा एनालिसिस. हर एक स्केल आपको ये बताता है कि हमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा में कौन सा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाना है. सो इट्स द इंपॉर्टेंट ऑफ डेटा एनालिसिस. आफ्टर दैट, प्रिसिशन एंड कंपैरिजन. अब यहाँ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स आपको एक प्रिसाइज रिजल्ट्स देने में हेल्प करेंगे. अब फिर से लिकर्ट स्केल का एग्जांपल ले लो. यहाँ पर आपने देखा कि एग्जैक्टली हाउ आर यू एबल टू फाइंड अ डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन और अग्रीमेंट. यहाँ पर आपने यस और नो में आंसर्स को एनालाइज करने के बजाय एक डिग्री फाइंड आउट किया कि अगर हम लिकर्ट स्केल का एग्जांपल ले रहे हैं तो अग्री या डिसअग्री, उसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं. देयर कैन बी अ मिडिल ग्राउंड एज वेल दैट आई एम न्यूट्रल अबाउट इट एंड आई स्ट्रांगली डिसअग्री टू इट. Next is research design. अब आप imagine करो that you are designing or testing the study on effectiveness of therapy. आप एक थेरेपी के effectiveness में एक स्टडी डिजाइन कर रहे हो. आप सबसे पहले ये टेस्ट करोगे या फिर एक रिसर्चर सबसे पहले ये टेस्ट करेगा कि सिम्टम की सीवियरिटी ट्रीटमेंट के पहले और ट्रीटमेंट के बाद क्या होती है. सो इसमें बेसिकली रेशियो स्केल का यूज होता है. हम अगले कुछ मिनट्स में इसको डिस्कस करेंगे. सो इससे क्या होता है कि हम जो भी असेसमेंट कर रहे हैं, हम जो भी सिम्टम की सिवियरिटी चेक कर रहे हैं, वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से चेक कर पाएंगे. द नेक्स्ट इज जनरलाइजेशन. Now, after conducting a research on a sample of university students, let's say, a researcher would generalize the finding to the broader population of students. ठीक है, इसी को हम जनरलाइज करना कहते हैं. रिसर्च इज ऑल अबाउट जनरलाइजिंग. अगर आपका सैंपल अच्छे ढंग से पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तभी आप उस स्टडी के कंक्लूजन को पॉपुलेशन में जनरलाइज कर सकते हो.
After that, statistical tests. It helps you to find which statistical test is best suited for the research we are conducting. After that, communication and interpretation. Now, researchers and practitioners can interpret and convey results more accurately with a clear understanding of scales which is used. लास्ट एंड फाइनल, ये मैंने आपको सैम्पलिंग मेथड्स वाले वीडियोस में भी बहुत अच्छे से समझाया है कि when you're talking about psychology, you're talking about science, you're talking about statistics and scientific validity. Let's say you're conducting a personality test. So the researcher would ensure the scientific validity of the personality assessment tool by using a reliable and valid interval scale. Interval scale क्या होता है, ये हम आगे आने वाले कुछ मिनट्स में पढ़ेंगे. So stay tuned. इससे क्या होता है कि किसी भी स्टडी की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है. सो कमिंग टू द टॉपिक जिसका आप सबको इंतजार था, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स. सो बेसिकली देयर आर 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट्स और देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स. फर्स्ट इज नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, interval scale, and at last ratio scale. Nominal scale and ordinal scales are usually used for qualitative studies, whereas interval scale and ratio scales are used for quantitative studies. Just keep that in mind. We'll understand this better when we move forward with the video. So, the first is nominal scale. Suppose आपने 3 टाइप के फ्रूट्स लिए और उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया. जैसे इसे हमने कहा ग्रुप ए, ग्रुप बी और ये है ग्रुप सी. क्या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ग्रुप ए किसी भी टाइप से ग्रुप बी से अच्छा है या फिर ग्रुप बी किसी भी तरीके से ग्रुप सी से अच्छा है? हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइप के फ्रूट को हमने सिर्फ एक लेटर अलॉट किया. जैसे ये एप्पल, हमने इसको ए बोला, ये है बनाना, हमने इसको बी बोला. इसका मतलब ये नहीं कि जिसको हमने ए लेटर दिया है वो किसी ढंग से दूसरे से सुपीरियर है. अब एक और एग्जांपल देखो. क्या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि धोनी सचिन से अच्छा प्लेयर है? हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमें अच्छे से जानते हैं कि जर्सी नंबर्स जो प्लेयर को दिए जाते हैं वो सिर्फ एक आइडेंटिटी के लिए अलॉट किए जाते हैं. अ नॉमिनल स्केल इज अ स्केल इन विच द नंबर सर्व्स एज टैग्स और लेवल्स, जैसे कि हमने अभी देखा, टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स. नॉमिनल स्केल यूजुअली नॉन न्यूमेरिक होता है और अगर नंबर्स हुए भी तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है. बट व्हाट आर वी डूइंग विद इट? व्हाट इज इट्स जॉब इन अ साइकोलॉजिकल रिसर्च? For example, you're conducting a study or experiment. You would often use nominal scale to categorize participants into different groups such as ethnicity, gender, the diagnosis criteria, etc. Now, here are some points जो आप नोट कर सकते हैं. फिर आता है ऑर्डिनल स्केल. देखो, अब यहाँ पे वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो नॉमिनल स्केल में हमने देखा. Apart from them, ऑर्डिनल स्केल प्रोवाइड अ मीनिंगफुल ऑर्डर टू कैटेगरी. मतलब इसमें हर एक आइटम का ऑप्शन कह लो, उनकी एक वैल्यू होती है. But the interval between them are not consistent, which means if a student got A grade on a subject and the other person got B grade and then the next person got C, हम ये तो कह सकते हैं कि ये जो पहला स्टूडेंट है वो डेफिनेटली B से अच्छा है, ये जो B है वो डेफिनेटली C से अच्छा है, डेफिनेटली वो एकेडमिक में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. But there can be a possibility that first student might have got 99, other might have got 98, but the next one have got 70. यहाँ पे देखो आपको कोई कंसिस्टेंट इंटरवल नहीं दिख रहा है. मतलब इन दोनों के मार्क्स के बीच में कोई कंसिस्टेंट डिफरेंट नहीं है. ऐसा नहीं कि सब 1% से सबके मार्क्स कम है या फिर 10% से कम है. नो, हमें यहाँ पर रैंक के बारे में तो पता चला, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन किससे कितना बेटर है. यहाँ पे ऑर्डिनल स्केल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, आप चाहो तो नोट कर सकते हो. फिर आता है इंटरवल स्केल. इंटरवल स्केल में वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो हमने ऑर्डिनल स्केल में पढ़ी थे. बट इन एडिशन टू दैट, इंटरवल स्केल में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी होंगे. जैसे कि आप थर्मोमीटर का एग्जांपल ले लो. थर्मोमीटर में हर एक डिग्री के बीच का डिफरेंस बिल्कुल सेम और कंसिस्टेंट हो. नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर 0 एब्सोल्यूट नहीं होता, विच मीन्स अगर आप यहाँ पर एक थर्मोमीटर देख रहे हो, इस थर्मोमीटर में 0 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या आप कह सकते हो कि वहां पर कोई टेम्परेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता? नहीं कह सकते हो, राइट? सो दैट्स व्हाट आई मीन व्हेन आई से कि इंटरवल स्केल में 0 एब्सोल्यूट नहीं होता. बेसिकली यहाँ पर 0 पॉइंट जो होती है वो आर्बिट्ररी होती है और यहाँ पर जो इंटरवल्स होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, अनलाइक ऑर्डिनल स्केल. फिर आता है रेशियो स्केल. अब रेशियो स्केल में पिछले तीनों यानी कि नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल, तीनों स्केल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे.
So a ratio scale is characterized by having equal intervals between them. Ratio scale में ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर ट्रू जीरो प्रेजेंट होता है, मतलब अगर वहां पर जीरो है मतलब वहां पर उस चीज की एब्सेंस है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वेट जीरो है, विच मीन्स उसका वेट जीरो है, वो हम वेटलेस फील कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इसका वेट जीरो है, इट डज नॉट कैरी अ वेट एट ऑल। अब यहाँ पर रेशियो क्या मतलब होता है? रेशियो मतलब देयर नीड्स टू बी अ मीनिंगफुल रेशियोज बिटवीन द वैल्यूज। अब जैसे कि पर्सन ए का वेट है 60 kgs एंड पर्सन बी का वेट है 30 kgs, तो क्या उसको हम 2/1 नहीं ले सकते, या फिर हम इसे 2:1 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। रेशियो स्केल में एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि द डेटा इन द रेशियो स्केल कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, डिवाइडेड एंड कैन ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड। अब क्योंकि यहाँ पर ट्रू जीरो एग्जिस्ट करता है, रेशियो स्केल में कोई भी वैल्यू नेगेटिव में नहीं होगी। कभी किसी का वेट नेगेटिव नहीं होगा, किसी की हाइट नेगेटिव नहीं होगी। सो वेट और हाइट दीज कैन बी द एग्जांपल ऑफ रेशियो स्केल। जब मैं अंडरग्रेड्स में था तो मुझे रेशियो स्केल समझने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। सो वी कैन लुक इनटू अनदर एग्जांपल ऑफ रेशियो स्केल. For example, a psychologist is conducting an experiment to measure the reaction time of participants. Now, participants are interested to press a button as quickly as possible. So once they see a light flash on a screen, they would immediately press a button. तो इसमें हो सकता है कि किसी को रिएक्ट करने में 1 सेकंड लगा, किसी को 2 सेकंड लगा और किसी को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो इससे हम ये स्टिपुलेट कर सकते हैं कि जिसको टाइम नहीं लगा उसका रिएक्शन टाइम 0 है। सो ये जो 0 है ना, इसका मतलब होता है कि कंप्लीट एब्सेंस। So that's all for today's video. If you're preparing for NET, JRF, M.phil, PhD, CUET or UPSC or any other psychology related entrance exams on that matter, make sure you subscribe to our YouTube channel because we are committed to complete all the syllabus before your exams. The detailed lecture notes are customized for you to ace your exams. Click on the link in the description to get them for free. Thanks for watching.